जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हुआ समर कैंप का आयोजन। तो वही दरभंगा स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जो विद्यालय परिसर में 25/5/2024 से दिनांक 27/5/2024 तक चला। समर कैंप में विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जैसे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु उन्हें स्विमिंग, योगा, जुम्बा, ध्यान, वैदिक गणित एवं टेबल टेनिस, शिष्टाचार इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में विद्यालय के बच्चों ने जमकर मस्ती की, जैसे इंडोर गेम्स में एयर हॉकी, टेबल फुटबॉल, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कैरम इत्यादि का बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। इसके अलावा कैंप में बच्चों ने मनोरंजन के लिए मिकी माउस, ट्रॉपोलिन, कला एवं शिल्प, बागवानी के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया था। अर्थात समर कैंप ने बच्चों को प्राकृतिक अनुभव के साथ जोड़ा तथा वे विभिन्न खेलों, नृत्य, गीत एवं वाहनों जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि की सवारी का लुत्फ उठाया। अतः समर कैंप के आयोजन से बच्चों के चेहरे खिल उठे तथा उन्होंने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर के खूब मनोरंजन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति बिछाड़िया ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, संगीत, नृत्य एवं अन्य गतिविधियां अत्यंत अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि समर कैंप जैसे गतिविधियों के प्रशिक्षण के जरिए बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा निखरेगी तथा उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। Speak loudly, beta. Sakshi Roy, and I am a student of GD Goenka Public School, Darbhanga. We are here to share my experience about our summer camp. I am extremely enthusiastic to tell you all about our prestigious summer camp, which we are being held from 25 till 27. Here I am about to share the skills and the practices which we have done in our summer camp. Well, let's start. First, we are called to the school and we have played horse riding, swimming and all the skills about table tennis, pool and everything which we need in our daily life as an athlete. And we have also learned how to climb, how to sit, how to have the table ethics and all the aesthetic and the things which a student needs in their daily lives. That's it for today and thank you. How's your experience to be in a summer camp? It was just amazing and I cannot express in my words. What's your name? Myself Sakshi Roy and I am a student of class 8C. Thank you. क्या कर रहे हैं अभी आप? We are learning swimming. वी आर रनिंग स्विमिंग। कैसा फील हो रहा है बताइए? I feel very happy when I do swimming. Another boy? Name? Ravi Prakash. In which class you study? 6th. What are you doing this time? Swimming. Swimming. How do you feel? Very happy. Very happy. Very happy. And my summer camp was very cool. I have done swimming and our swimming stadium also done we are doing pot making and our have pot painting and horse riding, bullock cart and some more activities. I am feeling very good because in this school various type of activity is there. Yes. Sivan school. How's your experience to be in a summer camp? My experience was very good. I am so happy for doing this.
Can you tell about your school? What's the manners you got from the school? What's the teachers' environment? What's your environment in your school? Yes, teachers was very good and study, and teachers will tell and explain any what then we are telling question, and teachers will explain in detail, and our games is also there, and swimming was also there in week 1 day. Totally, you are enjoying your summer camp very well. Yes, yeah, I am enjoying my summer camp very well. Okay. From which class you are? 6A, 6th. Your name? Sivan School, Thank you. School? GD Goenka Public School. So, Priti Vicharia, Principal of GD Goenka Public School, Darbhanga. I have been experience of more than 23 years in this field. I'm the educator since 23 years. I have worked with the metro cities also. I worked for approximately 15 years in Delhi. Then I shifted to Bhopal, Maharashtra. Even I have worked with Gujarat. So I have multiple experience of multiple states. But yes, I am really proud to say this, that this kind of infrastructure is really rare to find even in A-grade cities. ये एक ऐसी छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सर लेकर आए हैं हमारे चेयरमैन सर, ये शायद हमको बहुत कम देखने को मिलता है। स्कूल का सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पे है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि हम यहाँ बच्चों को देते हैं तो कुछ गलत नहीं है। आज के टाइम पे CBSE सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है बच्चों को हम 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करें, एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दिस दैट वी आर रियली वर्किंग ऑन इट एंड वी आर डिलीवरिंग इट इन आवर स्कूल टू आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप कहें तो लर्निंग, एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी वी आर यूजिंग, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं। हमारा तरीका होता है कि हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे फोकस करें, तो जितना भी अच्छा हम बच्चों को दे सकते हैं स्कूल में, हम बिल्कुल उस चीज़ के लिए विश्वास से कह सकते हैं कि हम अभी भी दे रहे हैं और आने वाले समय में हम शायद इससे भी बहुत अच्छा उनको भविष्य देंगे। और जो भी चेयरमैन सर का यहाँ पर मोटिव है शिक्षा को लेकर कि मुझे यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए स्कूल का, एंड माई टीम इज़ रियली वर्किंग फॉर इट एंड वी ऑल आर वर्किंग एज अ टीम, एज एन वन, and we will definitely achieve it. Whatever sir's aim is, whatever the vision and mission of the school is, we will definitely achieve it. Ma'am, one question. Yeah. What is the purpose of the summer camp? So we have this summer camp Would because you like to talk in English? Because ओके, नो प्रॉब्लम सर। समर कैंप का हमारा मकसद ये है कि हम जब डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ बच्चों को नहीं दे पाते, जैसे पॉटरी, हॉर्स राइडिंग, तो इन चीज़ों के थ्रू भी बच्चे बहुत सारी स्किल्स को सीखते हैं। जैसे बच्चे साथ में एक साथ काम करते हैं तो उनको कोलैबोरेशन आता है, बच्चे साथ में करते हैं तो इमोशनल वेलबींग उनका बढ़ता है कि हमें समाज में कैसे रहना है। बहुत सारी ऐसी 21वीं सदी की जो हमारी स्किल्स हैं वो हम इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमारा उद्देश्य है। ये ट्रेनर सब कहाँ से आए हुए हैं, कैसे ट्रेनर लोग? सर ट्रेनर्स इसमें से बहुत सारे तो बाहर से हैं, कुछ हमारे पास पटना से आए हैं, हमारी स्विमिंग कोच हैं वो बंगाल से हैं, और जो आपने अभी BS के सर को देखा वो भी हमारे नेपाल से हैं। तो बाहर के भी कोचेज़ हैं और कुछ हमारे लोकल कोचेज़ भी हैं जो हमारे दरभंगा स्कूल से हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। आपके इस प्रकार के कार्यक्रम करने से समाज को क्या मैसेज जाता होगा? समाज के लोगों को क्या कहेंगे? सर समाज के लोगों को यही मैसेज आता है कि जैसे हम समझ सकते हैं कि ये बच्चे हैं, कल बड़े होकर यही समाज बनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम बच्चों में ही वो सारी चीज़ों को डेवलप करें जो एक अच्छा नागरिक होने के लिए इंसान में बहुत ज़रूरी है। तो समाज को मैसेज यही जाता है कि जब बच्चे हमारे इतने कोऑपरेटिव वे से रह सकते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जैसा कि आपने पूरा कैंपस ही विजिट कर लिया है ऑलमोस्ट, बट आपको कहीं ये मिला नहीं होगा कि बच्चे किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो वही एक समाज के लिए मैसेज है कि अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन लिव विथ हार्मनी इन द सोसाइटी।
That is the most important. थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you. तो मैं कल भी आया था, परसों भी आया था। यहाँ पर समर कैंप का जो आयोजन हुआ है वो बहुत ही शानदार रहा है। सबसे पहली बात है कि पूरे मिथिलांचल में हमारे ख्याल से सबसे बड़ा स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो जीडी गोयनका ने दिया है वो किसी स्कूल में नहीं है। आपने खुद मुआयना किया होगा कि हर कुछ है इस यहाँ पे। आपको स्विमिंग पूल है, वो ट्रेनर जो है वो भी कलकत्ता से आई हुई हैं। बिलियर्ड्स हो गया, एयर हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कराटे का भी ये किया गया, हॉर्स राइडिंग भी सिखाया गया है और डिफरेंट गेम का आयोजन जो है किया गया। क्योंकि हम तीनों दिन आए, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और स्कूल से मैं अटैच्ड भी हूँ। और हम तो देखते हैं कि अगर ये बच्चे ये स्कूल इतना अच्छा नहीं होता तो हम लोग के भी बच्चे जो है हमको बाहर पढ़ाना पड़ता, हम लोग को भी। यहाँ 99 नहीं। मतलब आप गार्जियन का कहना चाहेंगे जो बाहर की पढ़ाई एक बार हम यही कहना चाह रहे हैं गार्जियन को कि एक बार आप आके जो है अपने से विजिट कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर फिरोज आलम अरमान। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 27/5/2024 को क्रमशः नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, बिरौल थाना 1, कमतौल थाना 1, साइबर थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 3, घनश्यामपुर 1, लहरियासराय थाना 1, भालपट्टी थाना 1, रैयाम थाना 1, सकतपुर थाना 1, महिला थाना 1, कुल 15 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई तथा उनके निराकरण हेतु संबंधित आदेश दिए गए। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार मद्य निषेध को प्रभाव बनाने हेतु अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडार, परिवहन के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दिनांक 26/5/2024 को बेनीपुर अनुमंडल के सकतपुर थाना के रात्रि गश्ती को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम राजा खरबार कमला बलान नदी के बांध के नीचे गाछी में शराब का खेप उतारा गया है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु कमला बलान नदी के बांध के नीचे ग्राम राजा खरबार के लिए प्रस्थान किया गया तथा वहां पहुंच करके कमला बलान नदी के बांध के नीचे पहुंचकर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 300 मिलीलीटर का 2700 पैक कुल 810 लीटर नेपाली शराब के साथ एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल बरामद कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, जताया आक्रोश। बीते 4 से 5 दिनों में ट्रांसफार्मर नहीं लगाने के कारण बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन गांव के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को कलवाही बासोपट्टी मुख्य सड़क को मनमोहन चौक को जाम कर दिया। इस दौरान दर्जनों दोपहिया एवं 4 पहिया वाहन जाम में फंसे रहे। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि मनमोहन गांव में बीते 4 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके कारण करीबन 4 दिनों से ग्रामीण अंधेरे में रहने के लिए विवश है। ग्रामीणों द्वारा कई बार विद्युत विभाग को फोन किया गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला, परंतु किसी भी प्रकार की कोई समाधान संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया गया। आप लोग जो रोड जाम किए किस के लिए जाम किए? भाई लोग को 4 रोज से बिजली की परेशानी है। फोन करने के बाद जैसे आप 10 दिन लगेगा, हो सकता है तो हम कर देंगे, ये सब बोल के बहाना मार के कोई लाइन का साधन देखने तक नहीं आया कि मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ कमर्शियल बिल लग रहा है, एक दिन अगर बिजली बिल नहीं भरने के बाद बिजली काट दिया जाता है। अगर 2 दिन से यहाँ जनता बोल रहा है उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम लोग रोड जाम कर दिए हैं। इसी वजह से हम लोग रोड को जाम कर दिए हैं। अगर हमारा काम हो जाएगा फोन रोड को चालू कर दिया जेयू को फोन किया है? फोन करने के बाद सीधा बोलता है कि 10 दिन लगेगा। तो क्या आदेश दिया है? कुछ ढंग से बातें नहीं करता, फोन नहीं उठा रहा, 10 आदमी को कॉल करने के बाद फोन नहीं रिसीव कर रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय राकेश कुमार यादव, घर मनमोहन। इस समस्या के लिए आप लोग जाम किए हुए सड़क? भाई 4 रोज से
लाइन नहीं आ रहा है, लाइन के लिए पूरा परेशानी हो रहा है, बहुत गर्मी है, क्या करेंगे? फ्रेंचाइजी को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहा है, न आ रहा है, 10 दिन टाइम लगेगा, 1 हफ्ता टाइम लगेगा, क्या करेंगे हम लोग? यही बता रहा है, कुछ फोन कर रहा है, 1 हफ्ता बात कर रहा है, 1 हफ्ते से बात कर रहा है। आप लोग क्या मांग है? बस लाइन दे हम लोगों को, और क्या चाहिए? लाइन का सुविधा, लाइन जो लाइन जो दे रहा है वो लाइन दे हम लोग। परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। आपका पर्चा? आपका पर्चा? आपका पर्चा? श्यामनंदन प्रसाद, घर मनमोहन। सब किया रोड जाम करने से? रोड जाम केने छै, 4 दिन भ गेलै बिजली के लगा। जब जही हिसाब से फोन कल जाए छै तो कोनो रिस्पांस नहीं ल रहल छै, और बदतमीजी तरीका के चाहे होत काल होत कि नहीं होत, कोनो ठीक नहीं, कोनो टाइम टेबल दे नहीं रहल छै। तै के हार के हम सब आब एही रोड पर उतर गेलै, रोड जाम करे के समस्या क्या, और कोनो विकल्प नहीं, रोड जाम करबे अपने आप समस्या निकलते। अपना पर्चा बता पाइए। रामदयाल शाह, मनमोहन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण सृजना निखार शिविर को लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा एमआरएम कॉलेज में पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से कौशल विकास भी स्वरोजगार पूरक विषयों का निःशुल्क प्रशिक्षण योग्य शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में दिया जाएगा। राहुल गांधी की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियों के बीच पीके का कांग्रेस पतंज बोले, बिहार में पद यात्रा करने के बाद गांव देहात में न कांग्रेस का झंडा दिखा, न कोई कार्यकर्ता और न ही कोई कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के कारण देश की सियासत गरमाई हुई है। इस पर जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब किसको कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा दल दिख रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और जगदानंद बाबू पर है। अब ये पद उन्हें क्यों दिया, ये तो आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि वो बिहार में क्या करना चाहती है। अभी जाके कांग्रेस से पूछिए, हम क्या उसमें बोलेंगे भाई। ये तो हर अब किसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, वो तो दल वाले आरजेडी वाले बता सकते हैं। कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं, न कोई कांग्रेस दिखा, न कांग्रेस का झंडा दिखा, न कार्यकर्ता दिखा, न कार्यक्रम दिखा। अगर लेकिन वो राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो चाहे कुछ करें तो उसके अच्छा है। हम तो किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं, जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।